Bismillah Rahman Rahim. Dear student, I would like to discuss topic 1 period and topic 2 group. From this it is clear that topic 1 is a period and it contains physical property of element, इसमें periodic property, atomic radius, ionic radius, melting point, boiling point, ionization energy. So these are the topics which are included in this topic 1 and we will discuss one by one these topics. So first of all, I would discuss briefly about periods. The modern periodic table was proposed by, you must know the background of this one, Moseley. This law states that if elements are arranged in order of increasing atomic number, dear student, look at increasing atomic number, this one, their chemical properties, very important point, repeat in a periodic manner. This is the first definition. Second, it can also be stated as the property of element or the periodic function of their atomic number. From this it is very clear, we are repeatedly saying periodic properties, period. From this question it will be more clear. Identify the incorrect statement about period of the modern periodic table. So there are 4 points which help you to understand what is period. Number 1, and you have to make sure which is incorrect statement about period. The first statement is A option, horizontal row of element. Dear student, from left to right, horizontal row. It is related with the number of shells involved in the electronic configuration. It is noted by Roman numerals, just as, or this last one is maximum number of periods. So from the 4 option, it has been asked which is incorrect one. So isme C option is incorrect one. Striking point, shortest period, very important one. This can be asked in the question in the USS paper. It is the first period and contains 2 elements. Next one is short period. 2 and 3 are short period. Long period, 4 and 5 are long period. Longest period, 6. And this is a question which has been asked in paper, UHS paper. So this is very important question. So please give emphasis on this question. This question again has been asked in the paper. Question is, magnesium is a metal while chlorine is non-metal, but even then they both belong to same period, belong to same group, are oxidizing agent, are reducing agent. And you have to point out which is the correct statement. Isme they belong to same period. From this explanation it is very clear why they belong to same period. From this example it is very clear. It involves 3 shells. In the electronic with respect to shell, इसमें 3 shell शामिल है और इसमें भी 3 shell शामिल है. So from this it has been included that they belong to same period. All of the following periodic properties increase along a period except. This is very important question and it has been asked कि कौन सी property जो है वो along the period जो है वो सारी increase होती है और कौन सी इसमें से increase नहीं होती. तो बेटा इसमें जो increase नहीं होती वो atomic size है. आयनोस एनर्जी जो है वो इसलिए इंक्रीज होती है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होती है. इसमें जो की पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है वो की पॉइंट है, न्यूक्लियर चार्ज. दिस इज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वन. क्यों एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है? इसमें 2 मेन रीजंस हैं. नंबर 1, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस जो है ना वो बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस वो इंक्रीज हो रहे हैं. और दूसरी क्या है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियर चार्ज के दरमियान वो इंक्रीज हो रही है और इस इंक्रीज से जो शेल है वो दैट इज पुल्ड टुवर्ड द न्यूक्लियस. इसलिए जो साइज है एटॉमिक साइज जो वो डिक्रीज हो रहा है. इसमें ये पॉइंट भी याद रखना है कि इसमें नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते. तो इसमें जो की पॉइंट है वो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अलोंग द पीरियड. और इसमें यही बात जो भी मैंने आपसे कही वो न्यूक्लियर चार्ज है. यू मस्ट रिमेंबर की पॉइंट इसमें वो न्यूक्लियर चार्ज है. अदर प्रॉपर्टी विच इंक्रीज अलोंग ए पीरियड, अदर प्रॉपर्टीज, और इसमें ये याद रखिए कि ये प्रॉपर्टी हैं जो वो इंक्रीज होती है अलोंग द पीरियड. नेक्स्ट फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट. व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? द अपेरेंट चार्ज दैट एन एटम वुड हैव इन ए कंपाउंड. यानी किसी पीरियड में जाएंगे तो इसमें तो +1 से +8. इसमें ये देखिए ये भी पीरियड में +1 है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है. इसी तरह पोलराइजिंग पावर, ये पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से बढ़ी. और ये सवाल एंटी टेस्ट में आया था, इसमें किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है या किस में कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा है. दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो इसमें आंसर है एल्यूमिनियम। सो ग्रेटर इज द पॉजिटिव चार्ज, ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर, ग्रेटर इज द पॉजिटिव चार्ज, ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर. दिस कैन बी सीन फ्रॉम दिस वन दैट विद द इंक्रीज व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस. सोडियम इसमें जो है ना वो पहले ग्रुप में है और देखिए उसका वो रिड्यूसिंग एजेंट है, लो आयनोस एनर्जी है और वो इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. फ्लोरीन ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये इलेक्ट्रॉन इट हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट? A substance which reduces the other but itself it is oxidized. Similarly, what is the oxidizing agent? A substance which oxidizes the other but itself it is reduced. इसमें देखिए इसमें एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा अलॉन्ग द पीरियड. सोडियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक इन नेचर है और क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड जो है ये एसिडिक इन नेचर. व्हाई? बिकॉज व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस बेस. When it is dissolved in water, it produces strong acid, perchloric acid. So you can see acidic character also increases. This is the question, MCQs, which one remains same along a period? Atomic radius, melting point, number of shells, electrical conductivity. तो डियर स्टूडेंट आपको याद रखना चाहिए, अभी हम पहले भी बात हो चुकी है कि पीरियड में नंबर ऑफ शेल जो है ना वो कांस्टेंट रहते हैं और इसमें पूछा गया विच वन रिमेन्स सेम. तो सेम इसमें है नंबर ऑफ शेल्स और बाकी प्रॉपर्टी जो हैं वो इसमें क्या है वो वेरी करती हैं यानी चेंज होती हैं. तो लिहाजा इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन देखिए. देखिए एग्जांपल से ये बात भी क्लियर हो रही है कि लिथियम में 2 शेल इन्वॉल्व हैं और ये अलोंग द पीरियड चले. बेरिलियम में भी 2 शेल इन्वॉल्व हैं. इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि नंबर ऑफ शेल डू नॉट इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल इसमें कांस्टेंट हैं, इसलिए दोनों में 2 शेल इन्वॉल्व हैं. पीरियोडिक प्रॉपर्टी. Now we continuously move forward to discuss the topic which are included in UHS syllabus. और ये उसकी आउटलाइन है और इसमें बताया गया कि periodic property है क्या? Those properties which change with increasing atomic number, very important point, atomic number in a regular repeating manner are called periodic properties. अब periodic property क्यों ऐसे होता है कि एक डेफिनेट नंबर के बाद आप वापस आते हैं? कॉज क्या है? पीरियोडिसिटी कॉज क्या है इसकी? ऐसा क्यों होता है? इसमें सेम वैलेंस शेल है. जब आप सेकंड ग्रुप की बात करते हैं सेकंड ए की तो बेटा उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा एस में 2 होगी. इसी तरह जब सेवंथ ग्रुप की बात होती है सेवंथ ए की तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 7 होगी और एस में 2 और इसमें पी में 5 इलेक्ट्रॉन. तो सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी जब भी कोई ग्रुप होगा अगर फर्स्ट ए ग्रुप है तो उसमें NS1 होगा इलेक्ट्रॉन, अगर सेकंड ए है तो उसमें NS2 है. इसका मतलब यह हुआ कि इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा तो उसमें एस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका कोई भी एलिमेंट होगा तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. सो फ्रॉम इट इज क्लियर दैट कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट किस पे बेस करती है? सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Electronic configuration of element help us to determine. Again, this is really very important question. This would help to understand the basic idea, the basic importance of the electronic configuration. And this can be explained by this example. Nitrogen, atomic number 7. With respect to, from this you can see if we follow this formula which was developed by Bohr, first में 2 electron और last में 5 electron. From this information you can see, you can find out इसमें नंबर ऑफ शेल 2 इन्वॉल्व हैं तो इसमें पीरियड इसका 2 है क्योंकि जितने नंबर ऑफ शेल होते हैं वो पीरियड को रिफ्लेक्ट करते हैं. इसमें आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमिन ग्रुप. तो इसमें ग्रुप जो है वो 5 ए इसमें सब ग्रुप है कि ये नॉर्मल एलिमेंट है. एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ए आता है एस और पी और इसमें मैक्सिमम जितना वैलेंस ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नाइट्रोजन का वो 5 है और ये नाइट्रिक एसिड में है +5. नेक्स्ट वन इज अगर कॉन्फ़िगरेशन N+L रूल के तहत हो तो इस 1s2 2s2 और 2p3 तो ये 2px 2py और 2pz. From this configuration you can find that it belong to p block element. So it contain 3 element. What is the valency? The number of unpaired electron present in the valence shell. तो इसमें 3 वैलेंसी 3 है. सो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन कि वी कैन टेल दी 5 मेन प्रॉपर्टी. वी कैन टेल दी
period, we can tell the group, we can tell the maximum oxidation state, and we can tell valency as well as इसमें हम बता सकते हैं block of element. Now, periodic property, atomic radius. Now we will discuss these 5 topics which are according to UHS syllabus. Atomic radius. देखिए, this is very important to differentiate this one from the other radius. Half distance between the center of two bonded atoms. These are simply bonded atoms. It can also be defined as the average distance between the nucleus of the atom and the outermost electronic shell. So you can see the definition. Half distance किसमें? Between the center of two bonded atoms. Its unit को picometer. Atomic size of an element depends. देखिए, atomic size of element depend ये क्वेश्चन है और इसमें किस पे ये डिपेंड करता है? क्या ये नंबर ऑफ इनर शेल पे करता है? क्या ये न्यूक्लियर चार्ज पे करता है? क्या ये दोनों पे करता है? तो ये दोनों पे करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, जैसे जैसे इनर शेल बढ़ते हैं तो क्या चीज है? एटॉमिक रेडियस जो है ना वो इंक्रीज होता है। कैसे? लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसमें 2 शेल इन्वॉल्व हैं, इसमें 3 शेल इन्वॉल्व हैं। सो विद द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ शेल एटॉमिक साइज जो वो इंक्रीज होता है। तो लिहाजा इसका साइज जो है, लिथियम का साइज स्मॉलर है लेकिन सोडियम का साइज ग्रेटर है। इट कैन बी इजिली ऑब्जर्व फ्रॉम दिस वन। इसमें पहला पॉइंट जो है इंक्रीज नंबर ऑफ शेल। तो नंबर ऑफ शेल जो किसमें बढ़ते हैं? दे इंक्रीज अलोंग दी ग्रुप। ये अलोंग दी जो है ना ग्रुप इंक्रीज होते हैं। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है न्यूक्लियर चार्ज। और आप देखिए लिथियम और बेरिलियम ये अलोंग दी पीरियड है। अलोंग दी पीरियड चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तादाद बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। चूंकि नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते इसलिए इसमें जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और बेटा अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो तो रेडियस जो है ना वो डिक्रीज होता है। लिहाजा इसमें 2 मेन प्रॉपर्टी हैं। इनर शेल के बढ़ने से साइज जो है, एटॉमिक साइज जो है वो इसमें क्या होता है? तो वो इंक्रीज होता है और इसमें ये डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो यही असल में एटॉमिक रेडियस है। दिस इज अगेन क्वेश्चन अबाउट साइज ऑफ एटम। कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम, विच ऑर्डर इज करेक्ट? इसमें कौन सा ऑर्डर जो है वो करेक्ट है? वो कहता है इसका साइज इससे बड़ा है, इसका साइज इससे बड़ा है, गलत है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट सही है। एक्सट्रीम लेफ्ट में जो ना साइज बढ़ता है और जैसे जैसे लॉन्ग दी पीरियड आप मूव करते हैं साइज जो है ना वो हमेशा डिक्रीज होता है। तो लिथियम का साइज बेरिलियम से हमेशा ज्यादा है। और ये कैसे हम बता सकते हैं? और ये आप बाकायदा एक एग्जांपल से ये बात डिस्कस कर सकते हैं। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 2015 में ये क्वेश्चन आया यूएचएस पेपर में और ये इसकी कंफर्मेशन है। लिथियम का साइज 152 पिकोमीटर है जबकि बेरिलियम का साइज जो है वो 112 पिकोमीटर है। देखिए इसका साइज बड़ा है और इसका साइज कम है और ये अलोंग दी पीरियड है। इसका मतलब लिथियम का साइज बेरिलियम से ज्यादा है। और ये जो क्वेश्चन है 2016 में ये क्वेश्चन आया। सवाल देखिए, फॉलोइंग ग्राफ शोज ए फिजिकल प्रॉपर्टी अलोंग द पीरियड 3 एलिमेंट्स, विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज शोन इन द ग्राफ। क्या ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को ज़ाहिर करती है? क्या ये नॉन मेटेलिक करैक्टर को ज़ाहिर करता है? क्या ये एटॉमिक रेडियस को ज़ाहिर करता है? क्या ये मेल्टिंग पॉइंट को ज़ाहिर करता है? देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अलोंग दी पीरियड इंक्रीज होती है, नॉन मेटेलिक करैक्टर अलोंग दी पीरियड इंक्रीज होता है और मेल्टिंग पॉइंट अप टू 4th ग्रुप इंक्रीज होता है। लेकिन ये कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। तो असल में ये एटॉमिक जो है ये एटॉमिक रेडियस है और रिपीटेडली इसके बारे में काफी दफा ये एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस में 2 चीजें हैं। एक इसमें कैटायनिक रेडियस है, इसकी 2 टाइप्स हैं। एक इसमें एनायनिक रेडियस है। दिस इज शोन R प्लस, दिस इज शोन बाय R माइनस। नाउ फ्रॉम दिस कंपैरिजन इट इज क्लियर विद इन दोनों में कंपैरिजन क्या है, कैटायनिक रेडियस में और एनायनिक रेडियस में क्या डिफरेंस क्या है। विद द लॉस ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम it becomes positive ion, positive one, loss 1 or more electron. Very important point. इधर क्या है, with the gain, उधर लॉस था और ये गेन है। क्या है, न्यूट्रल एटम से फिर क्या होगा, नेगेटिव आयन बनेगा। तो जब लॉस होता है तो पॉजिटिव आयन बनता है, जब गेन होता है तो नेगेटिव आयन बनता है। और इसके नतीजे में क्या इंपैक्ट आता है, जिसमें लॉस ऑफ आउटर शेल हो जाएगा। मसलन अगर आप लिथियम लेते हैं तो लिथियम में अगर आप एटॉमिक नंबर 3 है और 2 1 है, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो सेकंड शेल खत्म हो जाता है, डिक्रीज। इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो रिपल्शन बढ़ती है। इधर लॉस हुआ, शेल जो है ना वो डिक्रीज हुआ
और इसमें जब गेन हुआ तो रिपल्शन बढ़ गई इलेक्ट्रॉन के दरमियान। और इसमें क्या है, इसमें इम्बैलेंस क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में इम्बैलेंस हो जाता है। क्या मतलब कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्सीड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीड करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। नतीजा क्या होगा, ऐसे में लॉस से न्यूक्लियस होल्ड इंक्रीज हो जाता है और कैटायनिक रेडियस डिक्रीज होता है। इसमें एक्सपेंशन में क्या है, ये साइज बढ़ता है। और इसका सबूत देखिए, जो भी बात आप करते हैं उसका आर्गुमेंट उसमें स्टैटिस्टिकल डाटा है। देखिए सोडियम आयन, इसका साइज है इन टर्म ऑफ पिकोमीटर 102, सोडियम एटम 157, सिमिलरली फ्लोराइड आयन 133 और एटम का साइज जो है 72 पिकोमीटर है। जो पुरानी बुक है उसमें ये वैल्यू 136 दी गई है, अब जो नई बुक है लेटेस्ट जो है उसमें ये वैल्यू 133 है। स्ट्राइकिंग पॉइंट्स, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है, ये एक्सट्रीम एंड शो किए हुए हैं। आप देख रहे हैं विद द मैक्सिमम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइज इंक्रीजेज, विद द मैक्सिमम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन साइज डिक्रीजेज, एक्सट्रीम एंड। इसी तरह आप देखिए यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीड करके प्रोटॉन से चार्ज डेंसिटी बढ़ गई और इधर स्कैंडियम में चार्ज डेंसिटी कम हो गई। वही बात को हमने जर्नल लिखा है कि विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटायनिक रेडियस, विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनायनिक रेडियस इंक्रीज, while with the loss of electron cationic radius decreases. Similarly phosphide ion with the gain of electron, इसका साइज बाकी से ज्यादा है और स्कैंडियम में इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए 3 और इसका साइज सबसे कम है। तो आप इसमें देखिए ये ऑर्डर बताया गया किसका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? दो स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आइसो का लफ्ज और भी जगह आता है, आइसोटोप भी है, इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, आइसोबार है, ये और भी टर्म्स हैं इसके साथ रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस। अभी जो डिस्कशन पीछे हमने की है डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि स्मॉलेस्ट रेडियस किसका है, और फिर वही बात कि ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं और आप देखिए इन तमाम में 10 इलेक्ट्रॉन शामिल हैं। इसमें सबसे जो कम साइज होगा वो सिलिकॉन का है, क्यों, इस पे +4 चार्ज है। अगर इसकी ऑर्डर की बात करें कि सबसे कम किसका है तो इसका आंसर जो है वो ये है, और इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन देखिए। ऑल दी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, उसमें क्या है, ये इसका ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। दिस सिंबल इंडिकेट डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड दिस सिंबल इंडिकेट इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो डियर स्टूडेंट आपने ये भी रखना है कि अगर ये सिंबल डाला जाए, मैथमेटिकल सिंबल इंट्रोड्यूस कराएं, इसका मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और अगर ये सिंबल इंट्रोड्यूस किया जाए जिसका मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बाकायदा एग्जाम में आ चुका है, 2016 में इसी रिलेटेड क्वेश्चन जो वो आया हुआ है। तो आपको इस लेक्चर का एक और भी एडवांटेज है कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं हम वो भी आपके सामने रेफरेंस दे रहे हैं, लिहाजा यहाँ से आपको ये भी अंदाजा होगा कि कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है और उसकी इंपॉर्टेंस का क्या रेफरेंस था, क्या रीजन है कि वो पेपर में पहले आ चुका। इस रेस में पूछा गया कि आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन का है, आयनिक रेडियस यानी सही स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें 4 वैल्यू दी गई हैं, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर जो वो सी है। इसके बाद टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसके बारे में भी कई दफा एग्जाम में सवाल आ चुका है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग का क्या हमें क्या इंपॉर्टेंस देते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। टेल अस अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग द एटम और मॉलिक्यूल इन देम आर बाउंड टूगेदर, यानी उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी स्ट्रांग हैं, और जितनी वो स्ट्रांग होगी उतना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब वो देखिए, ये देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन क्या है, मार्क करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें 4 ऑप्शन है। क्या ये ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज है, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज है। तो इसमें जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट इंक्रीज है और देन डिक्रीज है। और ये इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देखिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पे इनका दारोमदार है, तो की पॉइंट इसमें बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। और डियर स्टूडेंट बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4th ग्रुप तक इंक्रीज होते हैं, और ये पॉइंट देखिए अप टू 4th ग्रुप जो है 4th A ग्रुप। ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, यही वजह है कि कार्बन की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक उसमें डायमंड है और एक उसमें ग्रेफाइट है।
और आप देख रहे हैं कि कार्बन जो है वो 4th ग्रुप का एलिमेंट है, और यही वजह है कि चूंकि इसमें बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 है, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। और आगे जब हम ग्रुप में जाते हैं 5th ए में, 6th ए में और 7th ए में, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होते हैं। और उसकी क्या रीजन है, ये मैं आपको इधर की पॉइंट में बता रहा हूं समरी में। देखिए क्या है, ये ग्रुप है। अब देखिए पेयरिंग स्टार्ट होती, पेयरिंग कैसे, नाइट्रोजन में 1 पेयर बन गया, ऑक्सीजन में 2 पेयर हो गए, और इसी तरह फ्लोरीन में 3 पेयर हो गए। डियर स्टूडेंट, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट, इसमें डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक प्लेस, जैसे कि आपके सामने है, इट इज वेरी क्लियर। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, दीज आर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट। और जब ये डिस्क्रीट हैं तो इसमें जो नॉन पोलर भी हैं, तो इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होती हैं, और यही वजह है ये गैसियस स्टेट में है, और यही वजह है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो यू मस्ट हैव एम्फसाइज्ड ऑन दीज 5 पॉइंट्स। व्हाट आर द 5 पॉइंट्स? नंबर 1, कौन से एलिमेंट जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है? 5th ए, 6th ए और 7th ए। क्यों? पेयरिंग स्टार्ट होती है, डायटोमिक फॉर्म में है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं, और ये नॉन पोलर होने की वजह से इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और ये गैसियस स्टेट में है। और आप जानते हैं कि जो चीज गैसियस स्टेट में होती है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2nd ए एलिमेंट आर हायर देन दोज ऑफ द ग्रुप 1 बिकॉज। देखिए ये सवाल की अगर नेचर देखें तो ये सवाल ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे है। इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, यानी सही आंसर क्या है? बुनियादी बात क्या है जिस पे हमने डिसाइड करना है, वो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वो डिटरमिन करेंगे कि वो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन किस में है। तो वो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा है वो सी आंसर है। क्या इसमें 2nd ए जो ग्रुप एलिमेंट हैं इनमें 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हैं, लिहाजा डेफिनेटली इसमें इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है, और यही वजह है कि पहले ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए फर्स्ट ए ग्रुप जो है उसमें NS1 है, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 1 है फर्स्ट ए, और जो 2nd ए ग्रुप है उसमें S इलेक्ट्रॉन 2 हैं। तो यही वजह है। तो इसमें सही आंसर क्या है? सी। क्यों? डिसाइड करना है बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन में, और जो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 2nd ग्रुप के एलिमेंट में ज्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ए, और यही इसकी एक्सप्लेनेशन में भी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पे एम्फेसिस है। द फॉलोइंग स्केच शोज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 8 एलिमेंट विद कंसेक्टिव एटॉमिक नंबर, विच एलिमेंट इज सिलिकॉन। और देखिए ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, और इसमें 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन सी योरसेल्फ फ्रॉम दिस ग्राफ। इसमें जो सवाल है ये पूछा क्या गया कि आप बताएं ये एलिमेंट 8 अरेंज हैं, इसमें सिलिकॉन वेयर सिलिकॉन स्टैंड। तो ऑप्शन सी में सिलिकॉन स्टैंड करता है, ये सी ऑप्शन ये है, और ये सी जो है एक्सट्रीम है, और इसमें मैक्सिमम बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन देखें पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और 4 है। अब बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होना शुरू कर देते हैं, हो जाती है, और इसी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। और ये आप देखिए ऑप्शन में सी ऑप्शन सही थी। क्यों सही थी? ये 4A ग्रुप को बिलोंग करता है, और इसमें 4 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, और बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिसाइड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका सबूत क्या है? ये कोवेलेंट सॉलिड है, इसका ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। जब किसी का मोलर मास 10,000 से ज्यादा होता है तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल, और मेल्टिंग पॉइंट इसका 1420 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तरह बॉइलिंग पॉइंट इसका 2380 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ्रॉम दिस डाटा इट इज वेरी क्लियर कि सी जो वो सिलिकॉन, और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 2nd ए ग्रुप? There are 4 options: calcium, strontium, barium and magnesium. तो lowest melting boiling point इसका है magnesium का, this one. Now we discuss in detail. If you see in the tabular form, you can see magnesium. Why it shows lowest melting and boiling point? Because it has hexagonal closed packing structure. While calcium and strontium they have face-centered cubic structure, and barium shows body-centered cubic structure. As you can see from the table, in a hexagonal closed pack structure, there are large empty spaces. But in case of face-centered cube, the atoms are tightly packed comparatively. But in this case, the size is greater than calcium, so melting and boiling point इसमें maximum जो है ना वो कैल्शियम का है। नेक्स्ट नंबर पे जो स्टोनशियम है, और ये बॉडी सेंटर्ड का निस्बतन इससे ज़्यादा है। अगर आप कंपैरिजन में आगे देखें
जो समरी इसमें दी गई है उसमें नोट करें। देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, इसका भी 12 और इसका भी 12 और इसका 8 है। इसमें आप देखिए कैल्शियम का सबसे ज़्यादा है और फिर स्ट्रोंशियम और फिर बेरियम और फिर मैग्नीशियम। लिहाजा चूंकि इसके लार्ज एम्प्टी स्पेसेस हैं और लार्ज एम्प्टी स्पेसेस जस्ट लाइक आइस, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। फ्रॉम द कंपैरिजन यू कैन सी द समरी। इस समरी में इट इज़ वेरी क्लियर melting point have been given, and from the comparison it is very clear that calcium has maximum melting and boiling point, और इसमें स्ट्रोंशियम दूसरे नंबर पे है, बेरियम तीसरे नंबर पे और लास्ट में मैग्नीशियम है। असल में कैल्शियम और स्ट्रोंशियम जो है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर शो करते हैं, बेरियम बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर शो करता है और मैग्नीशियम जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर शो करता है। और ये जो एब्रीविएशन है दे स्टैंड फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी दिए गए हैं। सो फ्रॉम द कंपैरिजन इट इज वेरी क्लियर, इसमें जो मिनिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो मैग्नीशियम का है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एग्जामिनेशन इज कंसर्न। इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove electron from the outermost shell. Dear student, it is very clear there are 4 points which are very important as far as ionization energy is concerned. Number 1, you must remember it is the minimum amount of energy, so minimum word very important one. Second, electron कहाँ से निकालें? From the outermost shell. तो लिहाजा outermost shell में निस्बतन न्यूक्लियस होल्ड कम होता है, लिहाजा एनर्जी कम रिक्वायर्ड है। और फिर क्या होना चाहिए? एटम मस्ट बी आइसोलेटेड, यानी वो बॉन्डेड ना हो और गैसीय स्टेट में हो, क्योंकि गैसीय स्टेट में उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी निस्बतन कम होती है। इसका कंपैरिजन के लिए आपको सिंपली ये बात बताते हैं, अगर कोई चीज़ गैसीय स्टेट में है तो वो बताना ज़रूरी है। लिहाजा सोडियम आयन है और ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो प्लस 496 किलो जूल पर मोल है। So from this it is very clear that whenever ionization energy is required, the substance must be in the gaseous state. It should not be in the solid. If the sodium is in the solid state, then we need two type of energy. It need heat of atomization plus heat of ionization. That clearly shows that in case of solid, you need two type of energy for the ionization. फर्स्ट है इसको आपने एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर इसकी आयोनाइजेशन करनी। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट व्हेन एवर आयोनाइजेशन एनर्जी क्वेश्चन इज आस्क्ड, यू शुड सी दैट द कंसर्न्ड एटम ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी इन द गैसियस स्टेट। इसमें जो फैक्टर हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें नंबर 1 है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा एटॉमिक साइज, तीसरा शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इनमें रिलेशन क्या है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इसके जो इसमें न्यूक्लियर चार्ज है उसमें इसके साथ ये डायरेक्ट रिलेशन है, यानी ग्रेटर इज द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह एटॉमिक साइज में और इसमें इनवर्स रिलेशन है। सो इफ द एटॉमिक साइज इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज स्मॉलर वन। शील्डिंग इफेक्ट जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, और ये भी आप देखिए ये इसके इनवर्स है। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जितना सब शेल करीब होगा न्यूक्लियस के उतना ही उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो लिहाजा एस जो है वो पी के मुकाबले में न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, लिहाजा इसलिए इसकी आयोनाइजेशन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा होगी। तो बेटा ये 4 पॉइंट इसमें है और 4 ही पॉइंट इसमें है, यानी न्यूक्लियर चार्ज है, एटॉमिक साइज है, शील्डिंग इफेक्ट है और पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। लिहाजा इन 4 पॉइंट के हवाले से ये सवाल यूं भी आया है एग्जाम में, इस तरह पूछा गया है। ये सवाल डेफिनेशन में आप आगे देखेंगे कि डेफिनेशन में भी सवाल पूछा गया है। तो इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना, और ये फैक्टर के बारे में भी सवाल आ चुका है। ट्रेंड्स इन दी पीरियोडिक टेबल, इसमें देखिए पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड जो है एक अलोंग दी पीरियड है और एक अलोंग दी ग्रुप है। चूंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अलोंग दी पीरियड इंक्रीज होता है, अभी हमने पढ़ा है कि उसके साथ ये डायरेक्ट रिलेशन है, लिहाजा विद द इंक्रीज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज। तो अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। और डाउन दी ग्रुप जो है
ये जो है ना ये डिक्रीज होती है। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स विच यू मस्ट रिमेंबर। इसमें नेक्स्ट इस स्केच में यू कैन सी the element which are on the top, they have comparatively greater ionization energy. Why they have greater ionization energy? Because they have comparatively stable electronic configuration. So greater is the stable electronic configuration, greater is the ionization energy. So it can be explained in the next page. अब आप देखिए, more stable electronic configuration of the element, more is the energy S subshell. एस सब शेल कंप्लीटली फिल्ड है बेरिलियम में, जो पीक पर पाया जाता है, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 899 है, और दिस इज ग्रेटर देन बोरान। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 801 किलो जूल पर मोल है। दिस क्लियरली शोज दैट इसमें जो एस सब शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, जबकि इसकी कन्फिगुरेशन में 1s2, 2s2 और 2p1 एक इलेक्ट्रॉन है, विच इज नॉट कंपैरेटिवली स्टेबल, बिकॉज पी सब शेल इज स्टेबल इन 2 फॉर्म्स, आइदर हाफ फिल्ड हो या ये कंप्लीटली फिल्ड हो। इसी तरह आप देख रहे हैं पी सबशेल नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1314 किलो जूल पर मोल है। अगेन यू कैन सी कि इसमें नाइट्रोजन में पी में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें पी में 3 है, ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड पी सबशेल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू P4। इसमें P4 में यानी पेयरिंग सिमेट्री नहीं है, तो इस केस में सिमेट्री है, लिहाजा ग्रेटर इज द सिमेट्री, ग्रेटर इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड मोर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए पी सब शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है नियॉन में, और इसीलिए नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है फ्लोरीन से ज्यादा है, और फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी 1681 किलो जूल पर मोल। इसमें फ्लोरीन में पी में 5 इलेक्ट्रॉन है, चूंकि इसमें पी में 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है इसलिए निस्बतन कम स्टेबल है। और वैल्यू जो है ना कंपैरिजन में बता रही हैं कि जितना ज्यादा स्टेबल सबशेल होगा उतनी ज्यादा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, और आगे भी देखेंगे इसको मजीद भी कंक्लूड किया गया है। देखिए द अबव स्केच शोज इर्रेगुलर ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आप देखिए पीक्स में रेगुलर ट्रेंड नहीं है, लिहाजा पीक्स पे जो एलिमेंट है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। दूसरा, इससे क्या साबित होता है कि ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ सबशेल जो है ना उसके वजूद को सबूत साबित करता है, और दूसरा ये इर्रेगुलर ट्रेंड शो करता है। इसमें दूसरी बात क्या है कि सबशेल की एग्जिस्टेंस को वेरीफाई किया जा रहा है इस स्केच के अंदर। और लास्ट में कंक्लूजन क्या है, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ग्रेटर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। सो दीज आर 3 पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन, इरेगुलर ट्रेंड है, दूसरा एविडेंस ऑफ सबशेल है, और तीसरा जितनी ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। नेक्स्ट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें आप देखिए जो बात हमने शुरू में कही, ये 5 एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा है, बिकॉज दे हैव कंपैरेटिवली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लिहाजा इसके बाद एक और चीज देखें, जो एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट अल्कली मेटल्स, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी निस्बतन कम है, और जो एक्सट्रीम राइट है नोबल गैसेस, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो निस्बतन क्या है, ज्यादा है। इसका सबूत क्या है, ये एक्सट्रीम राइट है हीलियम, और ये नोबल गैस है, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सबसे ज्यादा है। लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट में देखिए ये जो सीजियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। इसका मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कंपैरेटिवली आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और एट द एंड ऑफ द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी निस्बतन ज्यादा होती है। तो डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी क्लियर कि ये जो नोबल गैसेस हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा है कि पी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है या एस सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, और ये सक्सेसिव यानी जो 3rd नंबर पे आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है वो सेकंड से ज्यादा, और सेकंड की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट से ज्यादा है। अगेन यू कैन सी डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, और ये जो इरेगुलर ट्रेंड है वो इसमें जाहिर हो रहा है इरेगुलर ट्रेंड। और आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है इससे बड़ी बात साबित होती है कि ये जो पीक्स पर एलिमेंट है जो स्टार से शो किए गए हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, और इसमें बुनियादी वजह क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इस तरह 3rd पीरियड में देखिए, इस केस में ये स्टार से जो शो किए गए हैं तो 3 एलिमेंट है, बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन। इसके नीचे ये हैं, और इनकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी इसीलिए ज्यादा है कि पी सबशेल कंपैरेटिवली मोर स्टेबल हैं। तो आपने ये बात वाज़िह तौर पर नजर आ रही है कि जो भी एलिमेंट का एटम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है
उसकी आयोनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और ये इरेगुलर ट्रेंड इसी वजह से है। तो ये क्लियरली नज़र आ रहा है, देयर इज इरेगुलर ट्रेंड इन दी आयोनेशन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द पीरियड सेकंड एंड थर्ड। आयोनेशन एनर्जी का एक और भी नाम है, इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट द सेकंड एलिमेंट हैज ग्रेटर फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी देन दैट ऑफ फर्स्ट वन। अभी हमने इसको डिस्कस किया है। देखिए इसमें सेकंड फर्स्ट की आयोनेशन एनर्जी ज्यादा है, फर्स्ट की ज्यादा आयोनेशन एनर्जी। इसमें भी ये जो है ना, ये करेक्ट आंसर है। क्यों? सेकंड में हीलियम की आयोनेशन एनर्जी नियॉन से ज्यादा है। और अभी आपने पढ़ा था कि हीलियम की आयोनेशन एनर्जी कितनी है, 2372, और जबकि नियॉन की आयोनेशन एनर्जी कितनी है, 2081। और ये बुक्स में 81 भी लिखा हुआ है, और जो लेटेस्ट बुक्स है उसमें 80 है। तो यू कैन वेरीफाई दिस वन आल्सो। तो ये दोनों बुक्स में ये वैल्यूज दी गई हैं, और फॉर कंपैरिजन आपको नजर आ रहा है कि ये वैल्यू निस्बतन ज्यादा है। लिहाजा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हीलियम की आयोनेशन एनर्जी ज्यादा है, और ये आपको यहाँ से भी नजर भी आ रही है। नेक्स्ट जी, अब देखिए जो मैंने शुरू में कही थी बात कि जो ये सवाल डेफिनेशन के बारे में भी पूछा जाता है। देखिए आयोनेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज। तो ये अभी आपने जो बात इसमें एक्सप्लेन की थी, वो आयोनेशन एनर्जी है, वो डी आंसर आयोनेशन एनर्जी। तो ये इसकी डेफिनेशन के मुताबिक है, और ये हमने आगे ये वैध देखिए 2010 में ये सवाल आया भी है यूएचएस के पेपर में एंटी टेस्ट में। तो आपने डेफिनेशन पर भी पूरा जोर देना, डी आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें एलिमेंट में कंपैरिजन है, एल्यूमिनियम है, बोरान, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें सल्फर है और क्लोरीन है। अगर इसमें आंसर की बात की जाए तो सबसे कम आयोनेशन एनर्जी जो है वो एल्यूमिनियम की है, इसलिए कि इसके पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका एस सब शेल कंप्लीटली फिल्ड है, और इसी तरह इसमें क्लोरीन नियर टू कंप्लीटली फिल्ड। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो देखिए इसमें वैल्यू नजर आ रही है आपको। वैल्यू में एल्यूमिनियम की आयोनेशन एनर्जी सबसे कम है, क्यों? इसमें पी में 1 इलेक्ट्रॉन है। निस्बतन इसकी ज्यादा क्यों है? एस सब शेल कंप्लीटली फिल्ड है। और इसमें सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि पी सब शेल नियर टू कंप्लीटली फिल्ड है। अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो इसका ऑर्डर यह है कि सबसे ज्यादा आयोनेशन एनर्जी क्लोरीन की है, दूसरे नंबर पे इसमें सल्फर है, तीसरे नंबर पे इसमें मैग्नीशियम है, और लास्ट में इसमें एल्यूमिनियम है। अगेन दिस इज रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी क्लियर। तो इसमें जो मेन फोकस है वो है स्टेबिलिटी ऑफ द कन्फिगरेशन। ए सडन लार्ज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड। देखिए सेकंड और थर्ड में जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है वो किस वजह से है? इसमें भी जो मैटर जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें मैटर इन्वॉल्व है। पूछा गया है कि ये 4 ऑप्शन दी गई हैं, किस केस में सबसे ज्यादा आयोनेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी सेकंड और थर्ड में डिफरेंस। तो इसमें आंसर ये है, इसलिए कि अगर आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी के बाद सेकंड उससे ज्यादा होगी, और थर्ड चूंकि ये दोनों निकालने के बाद ये पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लिहाजा आप इस सूरत में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये हमने आगे इसकी डिटेल भी सारी बताई गई है, और इसमें नोट करें ये की पॉइंट है सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी। थर्ड जो है वो ग्रेटर देन सेकंड है, और सेकंड जो है वो ग्रेटर देन फर्स्ट है। और इसी तरह ये इस कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको नजर आ रहा है, और ये जो डाटा है ये भी हमने आगे दिया गया है। यानी फॉर योर कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि पहले में हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला इस केस में, और इसकी आयोनेशन एनर्जी वैल्यू ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, और जब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये आयोनेशन एनर्जी वैल्यूज हैं। लेकिन जब ये कॉन्फ़िगरेशन होगी तो देखिए मैग्नीशियम +2 में पी में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इस सूरत में जब पी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और आप ये जानते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की है, और आपको पता है कि जब नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन हो, ऊपर से +2 चार्ज हो, तो इट नीड्स मच मोर एनर्जी। फ्रॉम द कंपैरिजन इट इज वेरी क्लियर कि इसमें सेकंड में और थर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है सेकंड और थर्ड में। तो कंपैरिजन क्या है कि जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो आपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करते हैं, दैट इज वाई इट नीड्स मच मोर एनर्जी। इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। नेक्स्ट, ये नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी
टॉपिक 2 ग्रुप 2, इसमें टॉपिक 2 है ग्रुप, और इसमें देखिए ये हमारे सिलेबाई में शामिल है, वेरिएशन ऑफ द इन द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप सेकंड ए एंड सेवंथ ए, और दूसरा इसमें रिएक्शन, सेकंड ग्रुप के रिएक्शन यानी एलिमेंट किसके साथ है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ, किन प्रॉपर्टी कौन सी पढ़नी है, सेकंड ए और सेवंथ ए ग्रुप की, और दूसरा इसका रिएक्शन क्लोरीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और फिर यूजेस है नोबल गैसेस। ये आप देखिए, अब ग्रुप के बारे में बात हो रही है। ग्रुप में आपने पूछा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो बेटा पहली स्टेटमेंट इसमें क्लियर है कि ये ग्रुप जो है ना वर्टिकल कॉलम ऑफ द एलिमेंट होता है, ये सही है। इसमें दूसरा इट इज रिलेटेड विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये भी सही बात है। सी इट इज नोटेड बाय अरेबिक न्यूमरल, तो ये इसमें गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये इसको जाहिर करते हैं रोमन न्यूमरल से, लिहाजा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 है। इसकी वजह क्या है, एस पी और डी, इसके हवाले से 2 ग्रुप हैं, इसके हवाले से 6 ग्रुप और इसके हवाले से 10 ग्रुप्स हैं, लिहाजा इसीलिए ये 18 ग्रुप बनते हैं। और इसमें ग्रुप को किससे शो किया जाता है, रोमन न्यूमरल से, यानी ये। और ग्रुप को आगे फर्दर डिवाइड किया है सब ग्रुप्स में। देखिए सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए में अगर ए साथ लिखा जाता है तो इसका मतलब जैसे 5th ए है, इसका मतलब है ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और इनको नॉर्मल एलिमेंट कर। अगर बी लिखा जाता है तो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट है और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। फर्क यह है कि नॉर्मल एलिमेंट जो है ना वो कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाते, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड बनाते। तो इसमें ए और बी सब ग्रुप के साथ मेंशन किया जाता है। अब आप देखिए कंपैरिजन, वेरी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, यानी सेकंड ए ग्रुप में और सेवंथ ए ग्रुप में कंपैरिजन क्या है कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं और ये हैलोजन, ये सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट को हैलोजन कहते हैं, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, और इनमें ये रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी इनकी आयनिक एनर्जी कम है। और कल भी बात की थी हमने नेक्स्ट के रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, दैट सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस द अदर बट इटसेल्फ इट इज ऑक्सीडाइज्ड। इस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है मेटल में, और इनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इसीलिए क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, इनकी आयनिक एनर्जी कम होती है, और ये क्यों है, इनकी आयनिक एनर्जी ज्यादा होती है। और दूसरा इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है, तो लिहाजा आप देख रहे हैं इन तमाम में कंपैरिजन है, और इस कंपैरिजन में नजर आ रहा है कि ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। इसी तरह ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये कंपैरिजन डियर स्टूडेंट आपको हेल्प करेगा इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए। अब देखिए सेपरेटली सेकंड ए ग्रुप की प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टी डाउन दी ग्रुप इंक्रीज होती है और कौन सी डिक्रीज होती है। तो इसमें जो की पॉइंट है वो नंबर ऑफ इनर शेल है। सारी जो बेस है ना वो बुनियादी तौर पर इस पे है, इसके नतीजे में एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट भी होगा, इनर शेल की तादाद बढ़ती है, केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है, और ये मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, बेसिक करैक्टर बढ़ता है, और डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है। यानी इसमें क्या कहा गया, डेंसिटी फर्स्ट डिक्रीजेज, तो ये डिक्रीजेज कहां तक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम तक, और इसके बाद स्ट्रोंशियम और बेरियम यहां से इंक्रीज होती है। तो ये इंक्रीज है और ये जो है ना वो डिक्रीज है यहां तक। इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डाउन दी ग्रुप इंक्रीज होती है, और ये प्रॉपर्टी जो है आयनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटालिक बॉन्डिंग और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये मेटालिक बॉन्ड डिक्रीज होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिएक्शन ऑफ सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट विद ऑक्सीजन एंड वाटर। डियर स्टूडेंट हमने इसका बड़े डिटेल से कंपैरिजन दिया गया है, और आप देख रहे हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट सेकंड ग्रुप के हैं एक्सेप्ट स्ट्रोंशियम, उनके रिएक्शन शो किए गए हैं। इसमें रिएक्शन गिवन है और पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नॉर्मल ऑक्साइड इज नॉट फॉर्म्ड। अब देखिए नॉर्मल ऑक्साइड जो है इस केस में नहीं बनता, क्योंकि यहाँ ये स्टेटमेंट गलत है। लिहाजा सही स्टेटमेंट क्या है कि बेरियम को जब ऑक्सीजन इस कंडीशन में रिएक्ट करते हैं तो बेरियम पर ऑक्साइड बनता है। इसमें ऑप्शन देखिए, ये रिएक्शन दिया गया है कि ये जो ऑप्शन 1 है, दूसरी बी ऑप्शन 2 ओनली है, ये थर्ड एंड फोर्थ ओनली है, सेकंड एंड थर्ड ओनली है। तो इसमें जो बेरियम है इनफैक्ट वो बेरियम ऑक्साइड नहीं बनाता, बल्कि वो बेरियम पर ऑक्साइड बनाता है, और ये आपने डिटेल में भी देखिए इसमें बी ऑप्शन सही थी कि व्हेन बेरियम इज हीटेड इन एयर और ऑक्सीजन एट 500 to 600 बेरियम पर ऑक्साइड इसमें बनता है।
लेकिन बेरियम ऑक्साइड नहीं बनता। इन दोनों में फर्क क्या है कि जो बेरियम ऑक्साइड है उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, जबकि बेरियम परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की जो है वो -1 है, यानी इसमें ऑक्सीजन -1 है। तो लिहाजा जो नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, जो परऑक्साइड होती है उसमें -1 होती है, और जो सुपर ऑक्साइड होती है उसमें -1/2 होती है। अब ये नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन गिवन है, यानी अब वो पहले ऑक्सीजन के साथ थे, अब वाटर के साथ रिएक्शन है, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें देखिए ये 4 ऑप्शन में पूछा क्या गया, रिएक्शन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, इसमें कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि बेरिलियम का साइज स्मॉलर है, और इसीलिए ये नॉर्मल कंडीशन में स्टीम के साथ यानी इवन रेड हॉट टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करता। तो इसमें सवाल ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें रिएक्शन जो ए ऑप्शन जो है ना ये मुमकिन नहीं है, यानी बेरिलियम जो है वो वाट स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो लिहाजा बेरिलियम का इसमें जो आंसर है वो सही है ए ऑप्शन में, कि बेरिलियम को स्टीम के साथ इवन रेड हॉट टेम्परेचर पे भी रिएक्शन नहीं होता। और ये आपने इसकी डिटेल में भी देखिए, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट रेड हॉट टेम्परेचर बट रिमेन अल्कलाइन अर्थ मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड विद वाटर। प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन, यूजेस ऑफ क्लोरीन वाटर प्यूरिफिकेशन एंड एज ए ब्लीचिंग एजेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन ग्रुप्स, देखिए ये जो प्रॉपर्टीज हैं, पहला पॉइंट आपने ये बताना, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, और इसमें वंडरवाल फोर्सेज इंक्रीज होती हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो वो इंक्रीज होता है। इंटेंसिटी ऑफ कलर, ये जो है ना वो इंक्रीज होती जाती है। मसलन कैसे कि फ्लोरीन है, ये पेल येलो है, क्लोरीन है, ये ग्रीनिश येलो है, ब्रोमीन है, ये रेडिश ब्राउन है, और आयोडीन जो है ये ग्रेश ब्लैक है। तो आप देख रहे हैं कि कलर की इंटेंसिटी बढ़ती है, और ये डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे। तो यह इंटेंसिटी ऑफ कलर जो है वो आप देख रहे हैं वेरी कर रही है, और ये कलर जो है ना फास्ट होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है कि ये प्रॉपर्टी का कंपैरिजन में डिक्रीज है। तो इसमें एक नोट आप नोट कर रहे हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है जिसका ये जिक्र यहाँ मौजूद है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विद एक्सेप्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट की जो आयोनेशन एनर्जी है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट से ग्रेटर है। डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसकी डिटेल आगे फर्दर दी गई है। अब देखिए, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, यू विल रियली एंजॉय व्हेन एवर यू स्टडी दिस वन, बिकॉज इट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस। देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये जो है ना ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर ये है, और इसमें ये डिक्रीज हो रहा है। इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा 2.87 वोल्ट है। लिहाजा जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है। तो ग्रेटर इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर। इसी तरह फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी, ये वैल्यू आपको हेल्प करेंगी डिफरेंशिएट करने में। लिहाजा जितना साइज स्मॉल होगा उतना ही उसमें से ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। और देखिए इसका चूंकि साइज जो है स्मॉल है फ्लोरीन का, लिहाजा आयोनेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में देखिए, जो भी मैंने बात की थी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ पीरियड थर्ड जो है वो ग्रेटर है देन दैट ऑफ पीरियड सेकंड। उसकी क्या वजह है कि जो फ्लोरीन है उसका साइज स्मॉलर साइज है, ओवर क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निस्बतन कम है देन दैट ऑफ क्लोरीन एलिमेंट। तो आप जो नोट करें, जो डाटा है वो आपकी हेल्प कर रहा है टू इंश्योर कि जो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पीरियड 2। ये बेटा एक और कंपैरिजन दिया है बॉन्ड एनर्जी, इसका भी वो स्टेटस वही है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट की एनर्जी जो है वो ज्यादा है, और ये वैल्यू जो ना कंपैरिजन के लिए ये आपको बहुत हेल्प करती हैं। और बुनियादी बात यही है कि ये जो फ्लोरीन है इसका साइज जो है वो निस्बतन स्मॉलर है, और इसीलिए बॉन्ड एनर्जी जो है उसका ये ऑर्डर है, वंडरवाल फोर्सेस का ये ऑर्डर है। इन कंपैरिजन से आप देख रहे हैं कि आपने पूरा जो हैलोजन के टॉपिक है उसको कूजे में बंद कर दिया, यानी तमाम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह आपको इसी टेबल में से आएंगे। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, और ये सिंपल कंपैरिजन नहीं है, ये डाटा बेस्ड है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। तो यू कैन एंजॉय दिस इंफॉर्मेशन, और ये आपको बहुत हेल्प करेगी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन स्विमिंग पूल विल किल बैक्टीरिया and will make water free from germs. One theory suggests that as a result of reaction between chlorine and water,
प्रोड्यूसेस रिएक्टिव। इसमें 4 ऑप्शन गिवन हैं और आंसर क्या है, इनके दोनों के रिएक्शन से हाइपोक्लोरस एसिड प्रोड्यूस होता है और वो डिसोसिएट होता है और इसमें नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक फॉर्म ऑक्सीजन रिलीज होती है and that is responsible for killing of bacteria and you can see the detail। इसमें पहली बात यह है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है HClO, इसमें रिएक्शन क्लोरीन अंडरगोज, इसमें डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन है, इसमें एक HCl बनता है और दूसरा इसमें HOCl बनता है। इसमें ये -1 है, इसमें ये +1 है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। और इसी तरह ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये अनस्टेबल है और ये डिसोसिएट होके डिकम्पोज होके यानी इसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है और इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है एटॉमिक फॉर्म में दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ जर्म्स यानी बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट? एंटी कलर। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है और ये आंसर जो है वो क्लोरीन है। क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज की जाती है और अभी आपने क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी के हवाले से देखा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हवाले से इसकी वैल्यू ज़्यादा है और ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये ब्लीचिंग एजेंट भी है। इसके अलावा इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन में ये चीज़ें गिवन हैं। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं ये भी ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। ओजोन है, क्लोरीन डाइऑक्साइड है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है और SO2 है, ये भी ब्लीचिंग एजेंट हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोनों तरह रिएक्शन है और डियर स्टूडेंट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आप देखेंगे ये सवाल आ भी चुका है एंटी टेस्ट में और आप कंपैरिजन में देखिए ये सवाल गिवन है रिएक्शन, ये कोल्ड स्टेट में है, इसमें सोडियम क्लोराइड बना और सोडियम हाइपोक्लोराइड बना। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस से क्लोरीन का रिएक्शन है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। व्हाट इज द डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस। इसमें जो क्लोरीन का एक एटम है वो इसमें उसकी रिडक्शन हुई है और जो दूसरा एटम है उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। इसमें देखिए ये जो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इन द अबव डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज कन्वर्टेड फ्रॉम 0 to, देखिए ये 0 to ये -1 है और ये 0 to +1 है और ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कैनिज़ारो रिएक्शन भी कहलाते हैं, उसमें भी कैनिज़ारो रिएक्शन भी डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन की एग्जांपल है। और ये कोल्ड स्टेट में क्या डिफरेंस होगा हॉट में कि इसमें सोडियम क्लोराइड दोनों में बनता है लेकिन इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड इसमें बनता है कोल्ड स्टेट में। अब अगर इसका दूसरी देखिए जो भी जिसकी मैं बात कर रहा था क्वेश्चन की, ये इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन है। यानी इसमें क्लोरीन एटम जो है ना एक में रिड्यूस हुआ है क्लोराइड आयन में और दूसरे में क्लोरीन एटम जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। एक में उसमें माइनस चार्ज है और दूसरे में उसमें प्लस चार्ज है। अब देखिए ये दूसरी बात आ गई हॉट स्टेट में। हॉट स्टेट में ये -1 ही है पहले की तरह लेकिन अब ये +5 है, लिहाजा एक क्लोरीन एटम की रिडक्शन है और दूसरे की ऑक्सीडेशन है। ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। अभी आप इसमें कंपैरिजन में देखिए इन द अबव रिएक्शन, ये सवाल देखिए। अब इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर ये है कि एक में क्लोराइड रिड्यूस हुआ यानी -1 में और दूसरे में ऑक्सीडाइज प्लस, तो ये सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट बना जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 है। अब देखिए अभी मैं बात कर रहा था कि 2017 में ये क्वेश्चन आया, इसका मतलब है अब ये हॉट स्टेट की बजाय कोल्ड स्टेट में सवाल आ सकता है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न। और ये देखिए इसकी डिटेल में ये सारी बातें वही हैं जो मैंने अभी आपसे शेयर की हैं और डिटेल में ये सब कुछ आपको सामने एक्सप्लेन्ड है, तो फ्रॉम दिस यू कैन आल्सो टेक हेल्प। इसके बाद है यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। ये हमारा दिस इज द लास्ट टॉपिक, यानी ये 8th A ग्रुप है और इसमें यूजेस में पहला है नियॉन हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग यूजेस एक्सेप्ट। इसमें नियॉन में 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं A, B, C और D और पूछा यह गया है कि नियॉन हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग यूजेस एक्सेप्ट। तो ये नियॉन जो है वो इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब में यूज नहीं होता और ये देखिए इसमें आर्गन यूज होता है और नियॉन नहीं यूज होता। तो इसमें बड़ी सिंपल है, ये इंफॉर्मेशन हैं जो आपने याद रखनी है और ये सवाल एग्जाम में कोई ना कोई इसमें इसके बारे में पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ हीलियम, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है इस तरह से। अब देखिए 4 ऑप्शन है, ये सारी इसके यूजेज हैं मगर इसका ये यूजेज नहीं है, यानी ये इसमें इनकरेक्ट यूज है, यानी बैक्टीरियल साइडर लैंप। और इसमें जो बैक्टीरियल साइडर लैंप है उस हीलियम यूज नहीं होता और इसकी जगह जीनॉन यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ क्रिप्टॉन। इसमें देखिए
ये दोनों इसके यूजेस हैं, ये इसका आंसर है। इसमें देखिए ये दोनों में, यानी ये जो क्रिप्टॉन है ये इस केस में बी में यूज नहीं होता, गीगर काउंटर में, इसमें आर्गन यूज होता है, और ये आपके सामने यूजेस मौजूद हैं, यही इसका आंसर है। लिहाजा इसमें ऑप्शन जो है वो डी सही है, डी इज करेक्ट ऑप्शन। और इसमें कौन सी ऑप्शन सही नहीं है, वो ये, इसमें ये ऑप्शन गलत है, बाकी ऑप्शन सही है। डियर स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस कंटेंट ऑफ दिस टॉपिक, और इंशाल्लाह यू विल सी जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें ज़रूरत थी आपको टॉपिक के मुताबिक वो हमने डिलीवर किए हैं। इसके अलावा अगर आप एक और भी क्वेश्चन है जो आप इसमें अभी आप देख सकते हैं, रेडॉन इज एमिटर एंड बीइंग रेडियोएक्टिव इज यूज्ड इन, तो इसका आंसर जो है अल्फा है, अल्फा एमिटर और कैंसर है। और ये इसकी डिटेल आपके सामने देखिए, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2014 में ये आया हुआ है। और ये देखिए इसमें रेडॉन का ये जो एटॉमिक नंबर वो इधर लिखते हैं, मैस नंबर इधर लिखा जाता है। इसमें देखिए हीलियम अल्फा रेज जो है ना वो इसमें एमिटर है, इसमें 4 का मैस में डिफरेंस है और 2 का इसमें एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है, तो लिहाजा ये अल्फा मीटर, और ये जो अल्फा मीटर है यानी अल्फा रेज जो है ये ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर में इसको यूज किया जाता है, और इसकी डिटेल आपके सामने है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और इंशाल्लाह अगर आपको और मजीद भी प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो वो इंशाल्लाह आपको हमारी जो प्रैक्टिस बुक है उसमें बड़ी वजाहत के साथ और भी MCQs दिए गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको इस टॉपिक के मुताबिक जो UHS का पेपर है उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह यहाँ से आपको मिलेंगी, एंड यू विल रियली एंजॉय। यानी स्टेप ने जो आपसे वादा किया था, एक तो प्रैक्टिस बुक का, वो भी इंशाल्लाह एंटी टेस्ट में आपको मिलेगी, और वीडियो लेक्चर, यानी व्हाट स्टेप सेज इट प्रैक्टिकली प्रूव्स। थैंक यू सो मच।